निश्चल महाजन है और मैं दिल्ली से हूँ। मुझे घाना में 17 साल हो गए हैं और आउट ऑफ इंडिया इज़ 25 ईयर्स। हमें बड़ी खुशी है, मोदी जी घाना में आने वाले हैं और यहाँ के जो डायस्पोरा में करीबन 15 से 20 हज़ार इंडियन लोग हैं, उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एंड वी वांट टू वेलकम आवर सुप्रीम लीडर, प्लस जो उन्होंने 11 साल में काम कर दिया है, हमारे एक इंडिया को एक मुकाम जो दे दिया इंटरनेशनल लेवल पे, वो उस काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऊपर से जो काम वो कर रहे हैं इस वक्त, देश का फाउंडेशन स्ट्रांग करने पे लगे हैं, ताकि भावी जनरेशन जो उसमें काम करेंगी आगे, इंडिया को ग्रोथ से रोक सकता नहीं है। तो जो उनका सपना है 2047 का, वो जरूर पूरा होगा और हम उनके साथ हैं। होपफुली वी ऑल्सो सी दैट गोइंग टू हैपन विकसित भारत इन 2047। और सबका साथ सबका विकास जो कर रहे हैं, इट इज रियली अमेजिंग। I have never seen such a growth in India for last 11 years. What the pace have growth has gone there. Roads are going, infrastructure development are really going in a far speed. You cannot see now they are linked to Mizoram today. Also they are linked to Mizoram railway. They have taken a railway highest bridge in Kashmir also is there. It's really amazing, and what he is doing for the country is really great. And for Ghana, he is coming to Ghana, and Ghana India we have a long relationship, and while coming he's over here, definitely is going to strengthen our relationship together with the Ghana. Thank you very much. Welcome Prime Minister Modi ji. We are here to welcome you all. Thank you very much. मेरा नाम आतिश श्रृंगार पावर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं अफ्रीका में 18 साल से और घाना में पिछले 11 साल से हूँ। तो कैसे देखते हैं आप मोदी जी का यहाँ आना? हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पूरे भारतीय लोगों के लिए, पर इवन घाना वासियों के लिए भी, कि एक दोनों देशों में जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। हम यहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं भारत के लिए, और भारत से चावल जो इनका एक स्टेपल फूड है वो यहाँ आता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ना चाहिए दोनों के देशों में। साथ में मोदी जी ने कहा है कि वो इस बार घाना को वैक्सीन हब बनाना चाह रहे हैं, तो जो कि एक अफ्रीका के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वैक्सीन थिंग्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी और यहाँ के लोगों को उसका फायदा होगा। तो मोदी जी का यहाँ आना सिर्फ भारतीयों के लिए एक बड़ी बात नहीं है, पर यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की दिशा दिख रही है। और साथ में हम चाहते हैं कि व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हो। यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग भारत जाए, भारत के लोग यहाँ आए और एक दूसरे को समझे। तो इस वजह से हम काफ़ी उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि एक नए चलन की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। थैंक यू। Okay. Hi, my name is Lomhar Singh. I'm 12 years old. I've been in Ghana for most of my life. I'm from UP in India. So to start, thank you for giving me this opportunity to express my heartfelt gratitude towards Narendra Modi's visit on 2nd July, which is tomorrow. So I would like to commemorate some of the beautiful things he has done for this amazing country. One of these things include the infrastructure he has built here. A main idea of this, or a main example of this, is the Tema to Magnapan railway track, which he has spent more than $200 million building this railway track. This has definitely impacted Ghanaians for the better, in which it allows them to reach their workstations better or anywhere they want to be. Secondly, I would like to dive into the technological and the digital infrastructure he has added to this beautiful country. His Excellency added UPI, integrated UPI into the GHISS, which is Ghana's way of transactionating money. UPI is known as the Unified Payment interface, which he integrated with the GHISS, which is the Ghana Interbanking Settlements System. This hopefully will bring new financial trades from over the international border. This will definitely bring them closer and to more of a friendship state than benefiting each other. So yeah, thank you. नमस्कार, मैं ब्रिगेडियर दिनेश त्यागी घाना के अंदर में एक रोड कंस्ट्रक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर आ रहे हैं
और मेरे पूरा विश्वास है जिस तरह गति शक्ति योजना से उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का कायाकल्प किया और उसी की वजह से अब हमारी कंट्री की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। और इसी उनके यही उच्च विचार और सोच से घाना को भी लाभान्वित होंगे और घाना भी अपने प्रगति के मार्ग पर चलेगा, जिसमें कि वो सड़कें, रेल और एयरपोर्ट और इसी तरह के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करके अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएगा। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम नीरज महाजन है। मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ और मैं यहाँ एक इंटरनेशनल स्कूल में केमिस्ट्री की अध्यापिका हूँ। आज मोदी जी आ रहे हैं तो पूरे घाना में एक उत्सव जैसा लग रहा है मोदी जी के आने का। ऐसे लग रहा है कि भारत की आत्मा आज आके घाना में मुस्कुरा रही है। आज लग रहा है दोनों घाना और भारत एक ही सपने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। घाना और भारत ऑलरेडी अपना कल्चर, रिलीजन ये सब कुछ शेयर करते हैं और मोदी जी के आने से ये संगम और स्ट्रांग बढ़ता जा रहा है। और ये मोदी जी आ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमारी आवाज, हमारी सिटीजनशिप, इसकी भी कोई वैल्यू है। हम भी अपने आप को समझ रहे हैं कि वी आर ऑल्सो वन प्राउड इंडियन सिटीजन। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मोदी जी। मोदी जी, हम आपका तहे दिल से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी, होल घाना is waiting for you. Whole Ghana is there to welcome our national leader, our Namo Namo. So welcome Modi ji, Akwaba in Ghanaian language. Thank you. मेरा नाम मंजू मिश्रा है। मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। मैं यहाँ घाना में 15 साल से हूँ और मैं जब से मैंने सुना है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, हम लोग सभी इंडियन के अंदर बहुत उत्साह है। उनके स्वागत के लिए हम आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। मोदी जी सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री ही नहीं है, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। उनकी सादगी, उनकी सद्भावना, उनका समर्पण हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। और हम लोग के आत्मा में ये सादगी है, समर्पण है, तो हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। बस नमो। मैं अनामिका वर्मा हूँ। मैं घाना में ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से हूँ यहाँ पे। एंड इन 17 ईयर्स में इतनी ज़्यादा खुशी कभी नहीं हुई थी जो अभी हमें मिल रही है। सो मोदी जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। कोटि कोटि नमन मोदी जी। एंड आपका एक फेवरेट मंत्र मैं बोलना चाहूंगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए आपका ये मंत्र हम सबके लिए भी बहुत अच्छा है और हम बहुत हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप यहाँ आ रहे हैं। आपके जो काम कार्य है हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। आपने लेडी एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया है, योगा डे को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले गए हैं एंड हिंदुइज्म को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है। सो थैंक यू मोदी जी, थैंक्स अ लॉट। आपके आने से अफ्रीका में हम लोगों इंडियंस लोगों को जो नाम और शोहरत मिलने वाली है, जो खुशी मिलने वाली है और जो तरक्की होने वाली है, वो रियली सराहनीय होगी। एंड मोस्ट वेलकम मोदी जी, आप हमेशा फिर से आइए एक बार और। एंड थैंक यू सो मच। My name is Priyanshi Kamlesh Jha, and I'm filled with so much joy knowing that our Prime Minister Shri Narendra Modi is visiting Ghana, and it's not just like a diplomatic event, it's like a significant, like a way of showing that friendship is building between Ghana and India, and he's a big inspiration to a lot of people here, and we hope that you come visit a little more often. Thank you. हाँ, मेरा नाम ज्योत्सना सिंह है। मैं 12 ईयर से घाना में हूँ। मैं फ्रॉम वाराणसी से हूँ, जहाँ मोदी जी हमारे वहाँ के सांसद हैं और सांसद 2 बार रहे हैं। मैं स्वच्छ बनारस भारत उन्होंने बनाया, स्वच्छ बनारस बनाया है और भारत को भी बहुत स्वच्छ बनाया है। बहुत अच्छी चिकित्सा दिया है, बहुत अच्छी शिक्षा का माहौल बनाया है मोदी जी ने। और मैं हमेशा चाहूंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ही रहे और मैं इनको दीर्घायु होने की अपने दिल से कामना करती हूँ। और पूरे भारतवासियों मैं उनके लिए ये कहती हूँ कि आप उनके दीर्घायु होने की अपने दिल से उनके लिए प्रेयर करें कि वो दीर्घायु हो और हमारे लिए हमेशा प्रधानमंत्री इंडिया के बने रहे नरेंद्र मोदी। और हमें कोई और प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।
उनके सिवा, नरेंद्र मोदी के सिवा। उन्होंने बहुत कुछ किया है जो आई डोंट हैव स्पीच, आई डोंट हैव द वर्ड नरेंद्र मोदी के लिए, आई डोंट हैव द वर्ड। थैंक यू सो मच नरेंद्र मोदी, आप हमारे घाना में आ रहे हैं, थैंक यू। बस हम इंडियंस के लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व की बात है कि एक छोटी सी कंट्री में हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, बहुत गर्व की बात है हम भारतवासियों के लिए। थैंक यू सो मच। जी, मेरा नाम अमित चौहान है और मैं पिछले 4 साल से घाना में काम कर रहा हूँ और हम लोग मोदी जी के आने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने जो हम लोगों को आइडेंटिटी दी है तो इट्स रियली अमेजिंग। वी आर टू प्राउड टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वी आर टू एक्साइटेड, वी आर टू एक्साइटेड टू हिम। और हम लोग मोदी जी के स्वागत के लिए तहे दिल से तैयार हैं। हम लोग मोदी जी के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है, मैं यहाँ पे 12 साल से हूँ। हम लोग यहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता हूँ मैं, और हमारे पास लगभग 20 डायग्नोस्टिक सेंटर है। और जब से हम लोग सुने कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं मोदी जी से मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। उनका दिल से स्वागत है यहाँ पे। घानियन भी उनका काफ़ी एक्साइटेड है हेल्प करने के लिए। मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया का काफ़ी नाम आया है। और पहले बहुत सारे लोग नहीं जानते थे इंडिया के बारे में, जो रिमोट एरिया वहाँ पे लोग नहीं जानते थे, लेकिन मोदी जी के कुछ अच्छे अच्छे काम ऐसे हैं जिनकी वजह से सब जानते हैं। उनके वजह से हम लोग को भी जानते हैं। उनकी विदेश नीति है, फॉरेन से जो कभी कोई मजबूरी होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन को कैसे लेके आना है रिस्पेक्टफुली, वो मोदी जी को अच्छे से पता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, उनकी विदेश नीति बहुत अच्छी है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे हमेशा वो आगे बढ़ते रहें, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दें। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि घाना में आएँ तो हेल्थ सेक्टर में इनको थोड़ा सहयोग करें। काफ़ी इनके हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, आए इनको नई नई टेक्नोलॉजी दें हॉस्पिटल्स में, इनको रिमोट एरिया में हेल्प करें, इनको फंडिंग से, टेक्नोलॉजी से हर तरह से हेल्प करें। हम लोगों से जो भी सहयोग चाहिए हम लोग यहाँ पे तत्पर हैं, उनको सहयोग करने के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। और काफ़ी अच्छा रहेगा। एक इनका काफ़ी अच्छे लोग हैं, ये लोग भी बहुत, ये लोग सपोर्टिव हैं, तो इनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। तो इंडिया गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर रही है इनको हेल्थ टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको हेल्प करे, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में इनको हेल्प करे। तो ये सब सारी रिक्वायरमेंट है इनकी, तो गवर्नमेंट इनको हेल्प कर सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी। तो हम लोग काफ़ी उम्मीद लगा बैठे मोदी से आएंगे, कुछ अच्छा अनाउंस करेंगे और अच्छा लगेगा हम लोग को भी इनके साथ रहेंगे। मेरा नाम पायल श्रृंगार पवार है और मैं नागपुर से हूँ। मैं यहाँ पे घाना में 7 साल से हूँ। हाँ, जैसे हम लोगों को पता चला कि मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है वो सबको ही पता है कि उन्होंने जो जो काम किया है वो हम लोगों को, भारत को जो पहचान दिलवाई है। हम लोग भारत के बाहर रहते हैं, इतने सालों से रहते हैं, और जो लोकल्स है उनको हमारी तरफ देखने का नजरिया वो जो बदला है, हमको जो सम्मान मिला है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से मिला है। बाकी देशों के लोगों को देखने का नजरिया और भारतीय लोगों को देखने का नजरिया में बहुत ज्यादा ये बदलाव पिछले 15 साल में आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कारण है। हाँ जी, मेरा नाम मयंक सिंह है। मैं घाना में पिछले 15 सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ पे मैं फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करता हूँ। और हमें जैसे मालूम चला है कि अपने मोदी जी घाना में आ रहे हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जो 30 वर्षों बाद कोई भी प्रधानमंत्री भारत का जो कि इंडिया में आ रहा है, घाना में आ रहा है, तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि अपने इंडिया से हमारा कोई अपना मिलने आ रहा है। तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि हमें अद्भुत है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मोदी जी के कार्यकाल की, तो उन्होंने पूरे 11 वर्षों में पूरा कार्यकाल जो उनका रहा है बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में रहा है। उन्होंने बहुत ही डेवलप इंडिया को तो किया ही है, साथ में वो विश्व पटल पे अपने भारत का एक नाम अलंकित कर दिया है, जिसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि पहले जैसे इंडिया में हम, इसके पहले मैं 12 साल पहले भी दूसरी कंट्रीज में था, नाइजीरिया में या दूसरी कंट्री में, तो लोग मुझे उतनी वैल्यू नहीं देते थे। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं इसके बाद से हमें अलग सी ही एनर्जी रहती है, और लोगों को पता रहता है कि हाँ, इंडिया कोई कंट्री है जिसके हम सिटीजन हैं, और हमें उसको अलग ही वैल्यू देता है। ये अपने आप में बहुत नई चीज है और बहुत ही अच्छा प्राउड फील कराती है हमको। और रही बात इंडिया की, तो यहाँ पे जो भी वो इन्वेस्टमेंट या जो अभी अपना डिप्लोमेट्स मीट होने वाली है, इसका डेफिनेटली इनको बेनिफिट घाना को मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में वहाँ पे टेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाले हैं,
आपको डिजिटल जो इंडिया डिजिटल में लीडर है और वो यहाँ पे हेल्प करने वाली है, जैसे आपका यूपीआई वगैरह वो सब सिस्टम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, जो कि वो लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पे भी उतनी क्रांति आएगी और इनका देश भी उतना ही प्रोग्रेस करेगा घाना का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, माइनिंग इंडस्ट्री है या बाकी जो भी इंडस्ट्री है, इसमें घाना अपने इंडिया जो है टेक्नोलॉजी के रूप में हेल्प करेगा, जो कि डेफिनेटली पूरा ओवरऑल ग्रो होगा घाना। तो इसी के साथ मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। मुझे जब से पता लगा कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आने वाले हैं, बड़े ही फख्र से उनका इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि कब पधारें और कब हम वेलकम करें। हमें बहुत ही खुशी है इस चीज़ की कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, 2 शब्दों का अपना विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम, जय भारत। जी, मेरा नाम अमित चौहान है और मैं यहाँ पिछले 4-5 साल से घाना में हूँ। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन तो फूड प्रोसेसिंग है, लेकिन मेरी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड इज बिलोंग टू एग्रीकल्चर। तो मुझे जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन घाना में था सर, कि यहाँ पे ना बहुत अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है और बहुत फर्टाइल लैंड है। तो मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन सबको थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट करें प्लांट ब्रीडिंग के फील्ड में और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो इस टू हेल्पफुल इनके लिए बहुत अच्छा होगा और बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। तो मोदी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों को एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी मदद हो, जो भी वो कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से करें इनके लिए। थैंक यू।